આફ્ટરનૂન શોમાં આપનું સ્વાગત છે। તો ઓવરઓલ માર્કેટ જો ગઈકાલની સારી તેજી અને આજનો ઘટાડા સાથે ઓપનિંગ ક્યાંય ને ક્યાંય જો ગઈકાલની તેજી ક્યાંય ને ક્યાંય આજે પચાવી દીધી છે। માર્કેટ નિફ્ટી 24,000નું લેવલ તોડી નીચે આવી ગયા છે। 1 થી 1.25% ઘટાડો, બેંક નિફ્ટી બીજો 1.5% ઘટાડો અને સેન્સેક્સ બીજો ક્યાંય ને ક્યાંય જોઈશું આપણને 1.25% ઘટાડા સાથે। ત્રણે ઇન્ડેક્સ જો ગઈકાલની સારી મજબૂતી આજે બધી અહીંયા ધોવાથી જોવા મળી ગઈ છે। આ બધા વિશે શોમાં આગળ ચર્ચા કરીશું, પણ શરૂઆત હેડલાઇન્સની સાથે કરીશું। ભારતીય બજારમાં ઘટાડા સાથે કારોબાર, નિફ્ટીમાં ઉપલા સ્તરથી દબાણ વધ્યું। નિફ્ટી 250 પોઈન્ટ ઘટીને 24,000ની નીચે, તો સેન્સેક્સમાં 800 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 77,200 નજીક કારોબાર। બેંક નિફ્ટીમાં દબાણ વધારે જોવા મળ્યું। બેંક નિફ્ટી 900 પોઈન્ટ ઘટીને 56,000ની નજીક કારોબાર। બેંક નિફ્ટીના 14 સ્ટોકમાંથી 14 સ્ટોકમાં ઘટાડો। એક્સિસ બેંક, કોટક બેંક, એચડીએફસી બેંક અને આઈસીઆઈસી બેંકમાં સૌથી વધુ વેચવાલી, પ્રાઇવેટ બેંકોમાં જોવા મળ્યું દબાણ। માર્કેટ ખરાબ પણ મેટલ શેરોમાં થોડી મજબૂતી। મેટલ ઇન્ડેક્સ 0.5%ની મજબૂતી। હિન્ડાલ્કો, ટાટા સ્ટીલ વાયદાના ટોપ ગેનર્સમાં, તો નેશનલ એલ્યુમિનિયમ, વેદાંતામાં પણ સારી ખરીદારી। ગઈકાલની સારી તેજી બાદ ઓટો સ્ટોક રિવર્સ ગિયરમાં। મહિન્દ્રા, મારુતિ વાયદાના ટોપ લૂઝર્સમાં, તો અન્ય સ્ટોક બજાજ ઓટો, ટીવીએસ મોટર, હીરો મોટોકોર્પમાં પણ વેચવાલી સાથે કારોબાર। ફાર્મા શેરોમાં સારી તેજી। ફાર્મા ઇન્ડેક્સ 1%થી વધુની મજબૂતી। ડોક્ટર રેડ્ડી, સન ફાર્મા નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સમાં, તો અન્ય ફાર્મા સ્ટોક લોરસ લેબ, ઓરોબિંદુ ફાર્મા, અજંતા ફાર્મા, ગ્લેનમાર્ક ફાર્મામાં પણ સારી મજબૂતી। ઓવરઓલ માર્કેટ જો દબાણ હાલ વધારે જોવા મળ્યું છે, એને કે 24,000નું લેવલ તોડીને જે નીચે આવી ગયા છે, એટલે જે પોઝિટિવ સમાચાર હતા કે એને કહે જે યુદ્ધ વિરામનો એનો જે ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, અને પછી ત્યાંથી જો ફર્ધર ભારે સેલિંગ ક્યાંને ક્યાંય માર્કેટના જોવા મળી રહ્યું છે। નિફ્ટી આપણે જોઈએ તો 23,984, 277 પોઈન્ટનો ઘટાડો। બેંક નિફ્ટી 56,000ની નજીક ફરીથી આવી ગયા છે, 887, એટલે 900 પોઈન્ટનો જ આપણે ગણી લઈએ। અને સેન્સેક્સ બીજો 1,000 પોઈન્ટ, 77,200, એટલે ક્યાંને ક્યાંય જો ફરીથી હવે 23,000ની આદત ફરીથી આપણે નિફ્ટીમાં પાડવી પડશે એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ફર્ધર દબાણ આપણને જો માર્કેટમાં જોવા મળી રહ્યું છે। તો આ બધા વિશે વિગતે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ગેસ્ટ પણ જોડાઈ ગયા છે। ભક્તિ વેલ્થ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે नंदिता राय। नंदिता जी, पहले तो गुड आफ्टरनून, शो में स्वागत है। तो मार्केट कहीं ना कहीं देखो कल कुछ रिलीफ देने की ट्राई करा था, नहीं अच्छी रिलीफ दी थी वैसे, 1% के ज़्यादा की मजबूती। आज पूरी रिलीफ मार्केट ने वापस ले ली है कि अब अभी रिलीफ का टाइम नहीं, अभी और थोड़ा नीचे आने का टाइम है। तो फिर से मार्केट देखो 23,980, मतलब 24,000 के नीचे फिर से मार्केट गिर चुका है। बैंक निफ्टी ज़्यादा कोलैप्स हुआ है यहाँ से, क्योंकि प्राइवेट पीएसयू दोनों अभी मार्केट को गिराने के मूड में। तो अभी लेवल स्पेसिफिक तो क्या बात करें, नए लो मार्केट बना ही रहा है। तो वैसे भी अब आज सैंडविच सेशन है, कल वैसे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो लेवल स्पेसिफिक इंडेक्स में अभी कहाँ फोकस करें नंदिता जी? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो नमस्कार आपको एंड सारे दर्शकों को। तो बिल्कुल ओवरऑल मार्केट ने जिस तरीके से कल रिलीफ दिखाया था, आज अगेन मार्केट में एक माइनर गैप डाउन ओपनिंग हुई। लगा था कि मार्केट थोड़ा सस्टेन करेंगे, बट अभी मार्केट में फिर जो सेल ऑफ है वो देखने को मिला है। जैसे ही मार्केट ने अपने जो सपोर्ट जोन है उनको ब्रेक किया, उसके बाद एक वॉलेटाइल नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है। तो अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं निफ्टी की, तो अभी 23,980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी 56,070 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में लास्ट कुछ सेशन से थोड़ी वॉलेटिलिटी है, बट ओवरऑल यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो दैट इज ऑलमोस्ट, अभी भी मैं एक यही बोलूंगी कि ओवरऑल एक रेंज बेस्ड बना हुआ है। ले सपोज जैसे मैं निफ्टी की बात करूं, तो अभी फिलहाल निफ्टी के लिए आज का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 23,950 का। ये ब्रेक होता है तो बहुत ही मेजर सपोर्ट 23,880 से 23,850 का जोन है, जो मुझे लगता है कि इस सपोर्ट को मार्केट को होल्ड नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से यदि मैं ऊपर में बात करूं तो ओवरऑल अभी जो इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 24,130 का एक हर्डल है, रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक होता है तो 24,200 एक रेजिस्टेंस है।
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,320 का, जो कि मार्केट ने कल भी ब्रेक नहीं किया, आज भी कहीं ना कहीं ऊपर जोन से ही जो रिवर्सल है वो हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो वॉलेटाइलिटी मूव में कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग काइंड ऑफ थिंग मुझे दिखाई दे रही है। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी काफी वीक है, तो निफ्टी को जो ड्रैग करने का काम है वो बैंक निफ्टी ने किया है। अदरवाइज ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 23,950, 23,880 से 850 का जो जोन है, इसको मार्केट को कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। और मे बी इन सेकेंड हाफ हम थोड़ा सा जो रिलीफ है वो मार्केट में देख सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का जो स्ट्रक्चर है वो अभी यहाँ पे इंटैक्ट है। अब इसी तरीके से बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा ज्यादा वीक होता हुआ दिख रहा है, और उसका जो मेन रीजन है वो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स तो फिर भी ठीक थे, बट प्राइवेट सेक्टर्स में काफी हमें गिरावट थोड़ी देखने को मिली है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए यदि मैं इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं तो 55,700 इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और अभी आज तो 56,000 पे भी टच किया, बट उसके बाद वहां से 56,000 ब्रेक नहीं हुआ है, वहां से फिर हमें एक रिवर्सल जो है अभी देखने को मिल रहा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा 55,700 का। और इसके ऊपर यदि मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 56,500 इज अ गुड रेजिस्टेंस, ये भी ब्रेक होता है तो 56,900, और 57,150 का जो जोन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहां से हमें बार बार सप्लाई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं प्रॉपरली लेवल बेस्ड ट्रेडिंग और प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स का वेट करें, और वहां पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, लेट सपोज डिप में यदि हमें कुछ रिवर्सल्स काइंड ऑफ दिख रहे हैं तो बाय ऑन डिप ऐड किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरीके से रेजिस्टेंस जोन पे भी हमें यदि सप्लाई देखने को मिल रही है तो सेल और राइज इंटैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये न्यूज सिनेरियो ठीक नहीं होता तब तक ये जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है वो मार्केट में रह सकती है। इसी तरीके के जो मोमेंटम्स हैं वो हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो ये है कि आज हम थोड़ा सा जो रिलीफ है, यदि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होल्ड किए मार्केट ने तो मे बी वी कैन सी सम रिलीफ ऑल्सो, थोड़ा तो हमें मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, बाय ऑन डिप में थोड़ी बाउंस जो है वो मार्केट में पॉसिबल है। માર્કેટ વ્યૂ લેવલ સ્પેસિફિક જાણી લીધું કે માર્કેટ ક્યાંને ક્યાં જે વાતચીત કરી રહ્યા હતા ત્યારે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી બંને થોડો બાઉન્સ આપ્યો, નિફ્ટી ફરીથી 24,000 ઉપર અને બેંક નિફ્ટી બીજો 26,130, એટલે 26,000નું લેવલ બેંક નિફ્ટી ક્યાંને ક્યાં બચાવી ગયું છે અને નિફ્ટી બી ફરીથી પ્રાઇસ બાઉન્સ બેક બતાવ્યો, 24,000ની નીચે ગયા 23,000 જોઈશું 970 આજુ ત્યાંથી ફરીથી બાઉન્સ આપણને 24,000 ઉપરની પહેલ ક્યાંને ક્યાં જોવા મળી છે। લેવલ સ્પેસિફિક આપણે વાત કરીએ તો જેમ નિફ્ટીમાં જોઈશું નીચે 23,880, नीचे तरफ सपोर्ट करी के अत्यारे मेंटेन करीशुं, ऊपरनी तरफ 24,100 એટલે 130 200, અને मेन जो नवी तेजी माटे जोईए तो 24,300 ने 400 टकવું बहुत जरूरी है निफ्टी माटे। एना पछी ज आपणे कन्फर्मेशन मळी जाए कि निफ्टी में सारी एवी मजबूती आपणे अहींयाथी जोवा मळी शके। सेम बैंक निफ्टी आदे वधारे जो कोलेप्स त्यां जोवा मळे छे, कारण के प्राइवेट बैंको वधारे दबाण बनावी रह्या छे। एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बधी ज बैंक देखो 2-2% घटाड़ो बैंक निफ्टी में आपने जो एना लीधे फर्दर वधारे कोलेप्स बैंक निफ्टी में जोवा मळ्युं हतुं। यानी कि बैंक निफ्टी माटे बी जो 55,700 અને ઉપરની તરફ 56,500, 56,900, 57,000 લેવલ क्रॉस થાય છે પછી નવી ઉપર જોવા મળી શકે। ત્યાં સુધી આ રેન્જ સ્પેસિફિક કારોબાર આપણને જોવા મળશે। ખાસી ઉથલપાથલ ગઈકાલે આટલી મજબૂતી હતી, એટલી મજબૂતી ક્યાંને ક્યાંય ધોવાઈ ગઈ છે। એવો જોઈશું લેવલ સ્પેસિફિક અને સટો અહીંયા જોઈશું વ્યૂ રાખવાનો છે, કારણ કે 52 ડીપ સેલ ઓન રાઇઝ અને માર્કેટ ખાસું વોલેટાઇલ છે સેન્ટિમેન્ટના લીધે। હાલ ટ્રેડ સ્પેસિફિક અવોઇડ બી અહીંયા ખાસ કરીને કરી શકાય, કારણ કે ખાસું વોલેટાઇલ માર્કેટ આપણને હાલ જોવા મળી રહ્યું છે। તો ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક વ્યૂ થઈ ગયો। સ્ટોક સ્પેસિફિક જઈએ, હવે સવાલ જે આવે છે એના તરફ જઈએ। ફર્સ્ટ પહેલા ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ तो पहलो क्वेश्चन आवेलो है पारुलजीनो वोल्टास ऊपर। वोल्टास 2270 आजूबाजू बाइंग प्राइस है, 80 क्वॉन्टिटी है, सॉरी 1470 आजूबाजू बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म व्यू है और स्टॉक हाल जो तो एनी आजूबाजू चालू रहे 1480 बाजू।
तो नंदिता जी, वोल्टास ओवरऑल इन्वेस्टर की बाइंग प्राइस के आसपास अभी आ गया, अच्छी खासी तेजी वोल्टास में दिख रही है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रिलेटेड स्टॉक में एयर कंडीशनर जैसे ब्लू स्टार, वोल्टास अच्छी खासी तेजी आज गिरे हुए मार्केट में दिखा रहे हैं। तो वोल्टास ये गिरे हुए मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं, तो उनके बाइंग प्राइस के आसपास आ गया है। तो ये लेवल पे नई बाइंग कर सकते हैं या फिर अवॉइड करें, और लॉन्ग टर्म कौन से टारगेट के लिए रख सकते हैं वोल्टास? तो ओवरऑल यदि मैं वोल्टास की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूंगी, तो वो तो काफी दिनों से मतलब थोड़ा नेगेटिव और डाउन स्ट्रक्चर में था। बट इस स्टॉक ने कल भी अपने आप को थोड़ा बाउंस किया है और आज भी स्टॉक कहीं ना कहीं एक बाउंस मूव दे रहा है। 1483 की लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो ओपनिंग है वो 1495 के ऊपर होती है तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज यदि मैं फंडामेंटल वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी जो वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज हैं, यहाँ पे गर्मी सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं एयर कंडीशनर वगैरह, उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में ये जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वोल्टास में रहना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर अभी फिलहाल रहना चाहिए। और इन्वेस्टर को मैं बोलूंगी कि बिल्कुल अभी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। यदि उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो 1426 का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस है जिसको लेकर के वोल्टास को होल्ड किया जा सकता है। कमिंग डेज में 1535 एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यदि ये जोन भी ब्रेक होता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट जोन हमारे लिए जो होगा दैट इज 1575। और यदि इस जोन पे मिले तो और प्रॉफिट में रहे तो फिर यहाँ पे पोजीशन क्लोज करने की मेरी सलाह रहेगी। વોલ્ટાસ એને કે સ્ટોક જો આટલા ખરાબ માર્કેટમાં સારી મજબૂતી, જેમ સ્ક્રીન પર ચાર્ટ બી જોઈ રહ્યો છે, સારી મજબૂતી એને કે વોલ્ટાસમાં જોવા મળી છે। ઇન્વેસ્ટરના બાઇંગ પ્રાઇસ અત્યારે થોડું ઉપર ચાલ્યો છે, તો લેવલ સ્પેસિફિક જેમ વાત કરી નીચે 1100 આજુબાજુ સ્ટોપલેસ રાખીને ઉપરની તરફ જો 1500 લેવલ ક્રોસ થાય છે તો 1575 સુધીના પણ લેવલ વોલ્ટાસમાં જોવા મળી શકે છે। જેમ સમર સિઝન હવે ક્યાંને ક્યાંય ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો ડિમાન્ડ હવે એર કન્ડિશનર ઇક્વિપમેન્ટ રિલેટેડ સ્ટોકની સારી વધતી અહીંયા જોવા મળશે। તો વોલ્ટાસ ખાસ કરીને લેવલ સ્પેસિફિક અને વ્યૂ લોંગ ટર્મનો છે, तो होल्डनी सलाह यहाँ बने रही है। तो बात की वोल्टास। और नेक्स्ट सवाल तरफ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया तेजल जी का, जामनगर से। प्रीमियर एनर्जीज, ये भी स्टॉक आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है एक गिरे हुए मार्केट में। प्रीमियर एनर्जीज 734 के आसपास 130 क्वांटिटी बाई की है। 1 से 2 साल का व्यू और स्टॉक अभी देखो आज अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है। ओवरऑल मैं बात करूँ प्रीमियर एनर्जीज तो 760 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। ओवरऑल नहीं, 784 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है प्रीमियर एनर्जीज। तो नंदिता जी, ओवरऑल बात करें तो जो सोलर रिलेटेड स्टॉक है आज अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं, जैसे वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और भी स्टॉक है जो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी ये स्टॉक ने दिखाना चालू किया है। तो अभी ये उनका एक और भी सवाल है कि ये लेवल पर नई एंट्री ओवरऑल लेना है तो वो ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से टारगेट के लिए फोकस कर प्रीमियर एनर्जीज? सो एनर्जी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो तो बिल्कुल उनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ही दिखाई देता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मार्केट रिलेटेड वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट यदि सेक्टर रिलेटेड बात करें तो लाइक कमिंग मंथ्स, कमिंग ईयर में एनर्जी सेक्टर एक अच्छी अप्रोच है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो अभी जो स्टॉक है वो 785 चल रहा है, तो बिल्कुल अभी होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 720 का रहेगा। और यदि अपकमिंग लेवल्स की मैं बात करूं तो एक जो हर्डल अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है दैट इज 830 रुपए का एक रेजिस्टेंस होगा। और यदि यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट जोन हमारे पास होगा 880 तक का। 880 में भी यदि ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 1000 तक के जो लेवल्स हैं वो प्रीमियर एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। तो बात થઈ ગઈ પ્રીમિયર એનર્જીસ, વ્યૂ પોઝિટિવ બની રહ્યો છે। અને જેમ એનર્જી રિલેટેડ સ્ટોક જો સારી મજબૂતી કહેને કે ગ્લોબલ ક્યુઝ એનર્જી રિલેટેડ સ્ટોકને કહેને કે ઇમ્પેક્ટ નથી થતા, એટલે જો સારી મજબૂતી આપણને જો એનર્જી પેક્ટ ઓવરઓલ ઇન્ડેક્સમાં જોવા મળી હતી, આજે બી જો એનર્જી ઇન્ડેક્સ બી જો સારી મજબૂતી છે। પ્રીમિયર એનર્જી 4.5% મજબૂતી, એટલે કહેને કે જો સારી મજબૂતી આ સ્ટોકમાં જોવા મળી છે। એટલે હાલ આ લેવલે બી બાઇંગ કરવી તો સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે। અને ઉપરની તરફ 830 880 લેવલ ક્રોસ થાય છે પછી 1000 સુધીના ટાર્ગેટ આપણને પ્રીમિયર એનર્જીસમાં આવનારા ટાઈમમાં જોવા મળી શકે છે। એ સારી મજબૂતી જો ઓવરઓલ જે
પરંતુ આ સેક્ટર સ્પેસિફિક આપણે કહી શકાય કે એને કે જે ગ્લોબલ ક્યુઝ જે ચાલી રહ્યા છે તો એનાથી અનધર સેક્ટર સ્પેસિફિક આપણે જોઈએ કાં તો સ્ટોક સ્પેસિફિક વ્યૂ રાખે એમાં બી સારી મજબૂતી આપણને જોવા મળી શકે, જેમ કે પ્રીમિયર એનર્જી, કોલ ઇન્ડિયા, પાવર ગ્રીડ, ઓવરઓલ આ બધા સેક્ટર છે કે સારી મજબૂતી સ્ટોકમાં જોવા મળી હતી. તો ઓવરઓલ આ સાથે સમય થઈ ગયો છે બ્રેક લઈશું અને બ્રેક બાદ જે અન્ય બીજા સવાલો આવે છે માર્કેટ પર ચર્ચા યથાવત રાખીશું. તો બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. તો માર્કેટ જો કે એને કે ફરીથી 24,000નું સપોર્ટ લેવાનો ટ્રાય કર્યું છે. એક સારી વસ્તુ છે, હવે અહીંયાથી બાઉન્સ બેક આપણને સેકન્ડ હાફમાં જોવા મળે છે કે લેવલ સ્પેસિફિક બી આપણે જેમ વાત કરી ખાસ કરીને ફોકસ કરશું. હાલ તો જો 24,910 આજુબાજુ પહેલ નિફ્ટી જોવા મળે છે, 250 પોઈન્ટનો ઘટાડો એટલે નિયર બાય 1% ઘટાડો. ત્રણ ઇન્ડેક્સ જો 1% ઘટાડો, પણ બેંક નિફ્ટી 0.5% ઘટાડો, કારણ કે સૌથી વધારે કોલેપ્સ આપણને ત્યાં જોવા મળ્યું હતું. એકલે સારી મજબૂતી બેંક નિફ્ટીમાંથી સૌથી વધારે ઘટાડો બી ક્યાં ને ક્યાંય બેંક નિફ્ટીમાં આજે જોવા મળ્યો હતો. तो आ बदा विषय तो चर्चा राखीशू, पण आगे सवाल तरफ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया निराली जी का. औरोबिंदु फार्मा 1200 के आसपास 80 क्वांटिटी बाई की है. लॉन्ग टर्म का व्यूअर स्टॉक अभी देखो 1315 के आसपास चल रहा है. 2% की मजबूती आज फार्मा सेक्टर में दिख रही है. तो नंदिता जी, फार्मा रिलेटेड पहले तो बात करिए तो ओवरऑल जो सेफ हेवन की तरफ हम पहले देखते थे तो एफएमसीजी पैक्ट दिखते थे. अभी आजकल लोगों की नई पसंद आ गई है. फार्मा सेक्टर देखो अभी अच्छी खासी मजबूती कल भी दिखी थी, आज भी कंटिन्यूस इतने खराब मार्केट में दिखा रहे. औरोबिंदु फार्मा मैंने आज वैसे गेम प्लान में भी दिया था, तो 1315 का मेरा दूसरा टारगेट था, वो अचीव हो गया है. 2% की मजबूती. तो ओवरऑल औरोबिंदु फार्मा आपको कैसे लग रहा है चार्ट पे, नंदिता जी? तो बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं. बहुत अच्छा लेवल था आज ओवरऑल. यदि मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो जब भी मार्केट में इतना खराब सिनारियो होता है तो वहां पे यदि कहीं पे हमें डिफेंसिव ली इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कि जो फार्मा सेक्टर होता है वो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए. तो ओवरऑल यदि मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं तो स्टॉक 4 दिन से एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मजबूती पे है. ब्रेकआउट हर दिन हमें एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है औरबिंदो फार्मा में. और यदि मैं डेटा की भी बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग डेटा अभी मुझे देखने को मिल रहा है. तो अभी भी बिल्कुल जो बाइंग है वो एक्सपेक्टिंग है औरबिंदो फार्मा में, क्योंकि अभी इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे रेजिस्टेंस दिखाई देता है दैट इज 1,331 रुपए का. यदि ये ब्रेक होके सस्टेन होता है तो फिर 1,360, और उसके बाद यदि लॉन्ग टर्म व्यू कुछ प्लान कर रहे हैं तो 1,450 तक के भी जो लेवल है वो औरबिंदो फार्मा में हमें देखने को मिल सकते हैं. और फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगा वो अब हो जाएगा 1,250 रुपए का, जहां पे सपोर्ट रख के प्रॉपरली स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है. વાત થઈ ગઈ ઓરોબિંદુ ફાર્મા. સારી મજબૂતી આટલા ખરાબ માર્કેટમાં ફાર્મા સેક્ટરમાં જોવા મળી હતી, અને ખાસ કરીને ઓરોબિંદુ ફાર્મા જેમ ઇન્વેસ્ટરની બાઇંગ પ્રાઇસથી હાલ જો 100 રૂપિયા ઉપર ચાલી રહ્યો છે, એટલે સારા એવા પ્રોફિટમાં તો છે. જેમ હવે વાત કરી, હવે નેક્સ્ટ સપોર્ટ જે ઓવરઓલ વાત કરીએ તો 1250 જે સપોર્ટ તરીકે કાં તો ટ્રેલિંગ સ્ટોપલેસ તરીકે રાખી શકે છે, અને નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું તો 1331 અને ભાઈ 1450 સુધીના પણ લેવલ ઓરોબિંદુ ફાર્મા આપણને સારી મજબૂતી આ સ્ટોકમાં પણ જોવા મળી શકે છે. આજે બી જો 2 થી 2.5%ની મજબૂતી ફાર્મા ઓરોબિંદુ ફાર્મા ખાસ કરીને જોવા મળી હતી. તો આજે જો ફાર્મા પેક્ટ ક્યાંને કંઈ મજબૂતી સેફ હેવન તરીકે ક્યાંને કંઈ ફાર્મા સેક્ટર છે, ફાર્મા સ્ટોક છે, સારી મજબૂતી આજે આપણને આ જોવા મળી હતી. ઓરોબિંદુ ફાર્મા લોંગ ટર્મ માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી બેઝ છે, તો વ્યૂ હાલ पॉजिटिव यहाँ જોવા મળી રહ્યો છે. और नेक्स्ट सवाल तरफ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है भारती जी का पीजीएल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट. ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल स्टॉक है, इसमें भी आज अच्छी खासी मजबूती है. पीजीएल ये भी देखो तो 2-2.5% मजबूती इसमें भी दिख रही है. तो पीजीएल ओवरऑल देखो स्टॉक 590 के आसपास 1000 क्वांटिटी इन्वेस्टर ने बाई की है, और व्यू 1 से 2 साल का व्यूअर स्टॉक अभी देखो 550-60 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है. तो पीजीएल तो नंदिता जी कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल स्टॉक कल अच्छी खासी तेजी थी. डिक्सॉन, एम्बर एंटरप्राइज, ईबीबी और पीजीएल. आज भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई कि जो फीड की जो पॉलिसी थी तो उसमें इनको अपडेट मिला, एक मंजूरी मिले कि वो फॉरेन में अपने जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो परचेस वहाँ कर सकते हैं और बना सकते हैं. तो अच्छी न्यूज़ थी, रिएक्शन पॉजिटिव दिखा, पर फिर कॉलअप्स मार्केट की तरह इनमें ये स्टॉक में भी कॉलअप्स आ गया. और पीजीएल आप चार्ट में भी देखो तो एक लेवल स्पेसिफिक की रेंज में ही कारोबार कर रहा है. फिर आया था 623 के आसपास, फिर वहाँ से कॉलअप्स हो गया, अभी 560 के आसपास चल रहा है. तो पीजीएल ये लेवल पे क्या व्यू रखना चाहिए?
तो अभी PGEL चल रहा है 550 पे। तो देखा जाए तो स्टॉक में तो बिल्कुल हाई वॉलेटिलिटी देखी गई थी। 9 मार्च को स्टॉक ओपन हुआ था 599 पे, और उस दिन हमें 517 का लो मिला था। उसके बाद कहीं ना कहीं कल थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला है, और आज भी मैं बोलूंगी तो आज भी कहीं ना कहीं इनडिसीजन मोड में है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी स्टॉक थोड़ा कंफ्यूज है। तो अभी ओवरऑल डेटा की बात करूं तो वो तो थोड़ा नेगेटिव है अभी। बट स्टॉक यदि शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं तो बिल्कुल ठीक है स्टॉक। और स्टॉक जैसे ही अभी जैसे 550 का जो जोन है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट जोन फॉर द डे। यदि इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से वापस थोड़ी जो बाइंग है वो PGL में देखने को मिल सकती है। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 595 का। तो 595 का जो लेवल है, ये जब ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो ही फिर फर्दर अप मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जो कि नेक्स्ट हमारे पास जो जोन होगा वो 630 का होगा, जहां पे इसके पहले भी हमें रिवर्सल और कंसोलिडेशन देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला है कि अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा नीचे बन रहा है, दैट इज 500 रुपए का। 490 से 500 रुपए के बीच का भी सपोर्ट जोन है, वहां से स्टॉक को प्रॉपरली होल्ड किया जा सकता है। પીજી ઇલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ સ્ટોક જો ડેલી ચાર્ટમાં તો ખાસું એક રેન્જમાં જોવા મળ્યો હતો, નીચેની તરફ 500 ઉપરની તરફ 630, આ 100 પોઈન્ટની રેન્જ છે, 100થી 120 પોઈન્ટની એમાં જ કારોબાર જોવા મળ્યો હતો. અને જે ક્યાંય ને ક્યાંય જે પોલિસી જે બધા ફીડના નિર્ણયો આવ્યા હતો, સ્ટોક મુવમેન્ટને પોઝિટિવ સાઈડ કર્યું, પણ જો પછી ફરીથી કોલેપ્સ આપણને એને ક્યાંય સ્ટોક એટલે ફરીથી એક રેન્જમાં જ કારોબાર જોવા મળ્યો છે. એની ઉપરની તરફ એટલે જો 595 એ છે એ જો સસ્ટેન કરી જાય છે તો નેક્સ્ટ પછી આપણે વાત કરીએ 630, ત્યાંથી વારા ફરતી આપણને જો સ્ટોક મલ્ટિપલ ટાઈમ ત્યાંથી રિજેક્શન લીધું હતું, જો એના પર સસ્ટેન થાય છે તો પછી નવા અપમૂવ માટે આપણે પીજી ઇલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ હાલ અહીંયા જોવા મળી શકે છે. તો પીજી ઇલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ હાલ લેવલે વ્યૂ પોઝિટિવ થોડો સસ્ટેન બની રહ્યો છે, પણ ખાસ કરીને અહીંયા વ્યૂ અહીંયા જોવા મળે છે, હોલ્ડની સલાહ બની રહી છે पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट. बात થઈ तो निंदिता जी, इसके साथ समय हो गया सो समाप्ति का. तो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, आपके डिस्क्लेमर. तो जो भी डेटा एंड कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस किया है वो लर्निंग एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। मैंने मेरे क्लाइंट्स को जरूर सजेस्ट किया हो सकता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। થેન્ક યુ મેડમ સુમાવા માટે. તો રોલબર ઘણા દર્શકોના સવાલ આપણે ડિસ્કસ કર્યા, ગેસ્ટનો વ્યૂ જાણ્યો, તો એ લેવલ સ્પેસિફિક ખાસ કરીને ફોકસ કરશું કે માર્કેટમાં જો ભારે હાલ દબાણ તો જોવા મળી રહ્યું છે, ઘટાડો કન્ટિન્યુઅસ જો માર્કેટમાં વોલેટિલિટીના લીધે ભારે દબાણ માર્કેટ હાલ મૂડમાં જોવા મળી રહ્યું છે. નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટી, સેન્સેક્સ 300, મિડ કેપ સ્મોલ કેપ બી સવારે સારી મજબૂતીમાં હતા, પણ અત્યારે જો કોલેપ્સ ત્યાં પણ જોવા મળ્યું છે. એટલે મિડ કેપ સ્મોલ કેપ બી જો આ બી છે કાંઈ ને કાંઈ હાલ પ્રોફિટ બુકિંગ તો નહીં પણ દબાણ જ કહી શકે, કારણ કે જે પ્રમાણે સેન્ટિમેન્ટ જે બગડી રહ્યા છે, એક દિવસ સારી મજબૂતી આવે છે પણ મજબૂતી ક્યાંય ને ક્યાંય બીજા દિવસે આપણને ધોવાતી જોવા મળે છે. તો ખાસ કરીને ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક હાલ તો થોડા સેન્ટિમેન્ટ બગડવાના જ સવાલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજ સાથે સમય થઈ ગયો છે શો સમાપ્તિનો. આગળ એક બ્રેક લઈશું ને બ્રેક બાદ જે આગળ બીજા શો છે એમાં બી દર્શકોના ઘણા સવાલ આવે છે, એના પર બી ચર્ચા યથાર્થ રાખીશું.